Hello, Chu. Good morning. So myself, Dayalchan Pathak, I welcome you all to this Pathsala, where we were discussing about physics of class 11th. I have already given 4 lectures for class 11th, 2 lectures from physical world, and then we have started the chapter unit and measurement. In that we have discussed about first portion about fundamental, drive and supplementary unit. Then we have started the dimensional formula to write the units in the term of MLT inside a square bracket, that is called method of dimensions. In that we were discussing about what is application of dimensional formula. So we have discussed about 2 applications. Number first, by dimensional method we can convert any physical quantity, any drive units in the term of MLT. That means it's a dimensional formula we can find out. Number second, by dimensional method we can convert from one system to another. 1 Newton equal to 10 to the 5 time, 1 Joule equal to 10 to the 7 erg. So from one system to another we can convert N1 U1 equal to N2 U2. Then we have discussed that by dimensional method we can check whether the given equation is correct or not. हम डायमेंशनल से ये चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन सही है या नहीं है. फॉर डायमेंशनल मेथड it is necessary, if the equation is correct, so the dimensional formula of LHS should be equal to RHS. If it is wrong, then dimensional formula of LHS will not equal to RHS, and every part, the dimensional formula of every part of the equation should be same. What is the meaning of it? Let we start from here only. Now suppose our task, check that given equation S equal to ut plus half at square is wrong or correct. Wrong or? चलिए हमने चेक करना whether the given equation S equal to ut. From here only we are going to start. चलिए पीछे क्वेश्चन चेकिंग वाला कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे. नाउ we have to check this equation whether this equation is correct or wrong dimensional method. Now we know equation is what? Ut plus half at square. Ut plus half at square. Everybody know this is equation of motion secant. Equation of motion secant. Yes or no? This is equation of motion. Everybody know this is correct. But you know this is correct. You have to prove it is correct by dimensionally or not. Let's see. देखिए here what is S? S equal to होता है displacement. Everybody know about it. And U is velocity here, T is time here, and A is everybody know acceleration. Clear? If this equation is dimensionally correct, that means the dimensional formula of every part should be equal. अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसके हर पार्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. चलिए शुरू करते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, left hand side. What is left hand side? S. S means displacement. S means displacement. Displacement is vector fundamental unit because it is length. Displacement means length. Length means meter. Meter is the unit. So its formula will be m0. L is 1 meter and T is 0. यहाँ पर m भी नहीं है और t भी नहीं है, तो m भी 0 है, t भी 0 है, केवल कौन है? L है. L मीन्स केवल मीटर है. जैसे नाउ हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS. अब RHS का बात करते हैं. RHS हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2. फर्स्ट टर्म चलिए फर्स्ट टर्म के लिए निकालते हैं. फर्स्ट टर्म मीन्स ut इक्वल टू u मतलब वेलोसिटी इंटू t मीन्स टाइम. वेलोसिटी इज कॉल्ड displacement upon time. Displacement upon time into time. I have told you when for this dimensional method, this topic you need work equal to force into displacement, force equal to mass into acceleration, acceleration equal to velocity upon time, and velocity equal to displacement upon time. This much only you need. ये अपने आप दिमाग में याद रखेंगे. then you will convert. So velocity, displacement, time cancel. So क्या बच गया? Displacement. And displacement is what? Physical fundamental quantity. कन्वर्ट हो गया तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m नहीं है 0, L डिस्प्लेसमेंट का मीटर हुआ L1
T0। दैट मीन्स ये तो अभी तक सही है, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। अब सेकेंड टर्म को भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड टर्म इज हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, हाफ का तो निकाल नहीं सकते। मैंने क्या कहा था आपसे, नंबर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाला जा सकता, बिकॉज इट इज जस्ट नंबर, इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। नंबर नहीं होती, नंबर के साथ यूनिट भी होनी चाहिए तब वो फिजिकल भी। तो यहाँ पर ए क्या है, एक्सेलरेशन इंटू टी क्या है, टाइम का स्क्वायर। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम का स्क्वायर। ए पार कर गई। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू ऊपर क्या बच गया, टाइम। क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो गया, m0 l1 t0। दैट मीन्स देखिए LHS डायमेंशनल फॉर्मूला, RHS के दोनों, दैट मीन्स इक्वेशन इज करेक्ट। तो इक्वेशन सही होने के लिए क्या जरूरी है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्वेशन, इफ द इक्वेशन इज करेक्ट देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एवरी पार्ट शुड बी इक्वल। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एवरी पार्ट शुड बी इक्वल, क्लियर। दैट मीन्स we can add ut plus half at square is coming here. That means their dimensional formula is same. By dimensional method, if two quantities are in addition, in subtraction, that means their dimensional formula is same. इसका मतलब उनका dimensional formula क्या है, same है, क्लियर। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। What is principle of homogeneity? Principle of homogeneity is that the dimensional formula of every part of equation will remain same. Means दो चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं केवल कब, we can add and subtract two physical quantity when their dimensional formula will be same. जब उनके dimensional formula same होंगे तभी वो ऐड होंगे, अदरवाइज वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इज इट क्लियर। और इक्वल भी तभी होंगे जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, सेम। इज इट क्लियर। सो एनी इक्वेशन यू कैन चेक, ओनली दीज थिंग्स यू नीड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, the next application is, what is the next application? Next application of dimensional formula is to derive formula by dimensional method. By dimensional method means you can derive any formula. आपको जो फॉर्मूला पता नहीं हो उस फॉर्मूले को आप ड्राइव कर सकते हैं बाय डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड से आप किसी भी फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू नो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल वी नो अबाउट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ यू हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन बाय डायमेंशनल मेथड। मान लीजिए आपने इस इक्वेशन को किस मेथड से डिराइव करना, डायमेंशनल। तो क्या होगा क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखिए, लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ये क्वेश्चन होगा, डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स मास m एंड वेलोसिटी v, derive its formula by dimensional method। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, derive its formula by dimensional method। इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी का बाय डायमेंशनल। आपने सुना है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ यू कैन ड्राइव काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बाय डायमेंशनल मेथड। कैसे करते हैं, डायमेंशनल मेथड से जो हमारे को फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। देयर आर 5 स्टेप। कितने स्टेप होते हैं इसमें, 5 स्टेप। स्टेप सेम रहेंगे। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को रीड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, क्या है, मास एंड वेलोसिटी। तो दोनों को नोट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी के किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली डिपेंडेंसी दिखा देंगे, चाहे कुछ हो, वो यूनिवर्सली करता हो नहीं करता, हम केवल डायरेक्ट जितने भी फैक्टर होंगे उन सबको डायरेक्टली डिपेंडेंट बना देंगे। दिस इज इक्वेशन 1। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो इन द गिवन क्वेश्चन
जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सबको ऐसे लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो भी दिया होगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है या कुछ भी दिया हो। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी K डायरेक्टली डिपेंड ऑन mv, काइनेटिक एनर्जी K डायरेक्टली डिपेंड ऑन mv। तो खोल देंगे इसको, व्हेन यू विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी यू विल गेट ए कांस्टेंट, क्लियर, यू विल गेट ए कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आपकी मर्जी है, कांस्टेंट यहां मान ले रहा हूं a, हियर a क्या है? कांस्टेंट। क्या मान लिया मैंने a को? कांस्टेंट। में कुछ भी मान सकते हैं आप, a कांस्टेंट को कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। देयर इज ए कांस्टेंट a, क्लियर, आई हैव टेकन कांस्टेंट a, दिस इज इक्वेशन नंबर b, इक्वेशन नंबर b कर लेते हैं इसको, या ऐसे करते हैं इक्वेशन नंबर a। अब क्या करेंगे, इसी स्टेप में आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के कांस्टेंट को छोड़कर जो भी टर्म है, जैसे m है, कितने टर्म थे? 2 थे, m के ऊपर लगा देंगे a, दूसरा टर्म जो है उसके ऊपर लगा देंगे b, तीसरा होता तो क्या लगाते थे? c। इस तरह से कर लेंगे, ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी b। यहां पर स्टेप आपका खत्म हो जाएगा। देन अब आएगा स्टेप नंबर 3। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS। क्या निकालेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS। कितना है LHS में? क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है LHS में। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या हुआ? वर्क हुआ। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क को एनर्जी बोलते हैं, और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास फंडामेंटल हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मास फंडामेंटल, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो सब फंडामेंटल हो गए। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होगी, मास के बदले m की पावर 1, डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर स्क्वायर l स्क्वायर, t ऊपर गया तो t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया LHS। अब क्या करेंगे, इसी स्टेप में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका निकालेंगे? RHS। अब निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। RHS में आ जाते हैं, A कांस्टेंट है, देयर इज नो डायमेंशनल फॉर्मूला, नो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। चलिए अब क्या बचा? m की पावर a, v की पावर b। दूसरा टर्म क्या बचा? m की पावर a और v की पावर, m मतलब मास, मास का तो m हो गया, m की पावर हो गया a। वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी होती है आपके क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की पावर b। तो कितना आ गया? m की पावर a, डिस्प्लेसमेंट हो गया l, टाइम हो गया t की पावर b। सॉल्व कर देंगे, कितना आ गया? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b। ऊपर गया तो -b हो जाएगा। यस और नो? ये हो गया स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS निकाल लेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला RHS। तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, RHS का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। निकल गया। अब क्या करेंगे? स्टेप 4, स्टेप 4 कंपेयरिंग LHS एंड RHS। LHS और RHS को लिख लेंगे पहले। क्या है LHS? M1 L2 T की पावर -2। RHS क्या है? MA LB T की पावर -B। आया ना? यार अब इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना मतलब होता है यहाँ m है, यहाँ भी m है, यहाँ पावर कितनी है? 1, यहाँ पावर कितनी है? a। तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो गया? 1। यहाँ b की पावर कितनी है? यहाँ l की पावर b है, यहाँ l की पावर 2 है, तो b इक्वल टू कितना हो गया? 2। थर्ड में भी करेंगे तो b इक्वल टू 2 ही आएगा। आ गया? बस खत्म हो गया। अब आ गया क्या? स्टेप नंबर 5। अब क्या आया? स्टेप नंबर 5। स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन कैपिटल B। यहां रख देंगे वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा? k इक्वल टू a m की पावर 1, v की पावर 2। हेयर a कितना है? a इक्वल टू हाफ। सर हमको कैसे पता चलेगा a हाफ है? देखिए आपको अगर पता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। देखिए mv स्क्वायर आ गया,
इसका मतलब ए क्या था, हाफ था। अगर आपको पता नहीं है ए क्या है तो आप ए पे ही छोड़ देंगे। दिस इज द फॉर्मूला प्रूफ। So by dimensional formula method we have proved that the kinetic energy is half mv square। तो कोई भी क्वेश्चन हो, स्टेप यही रहेंगे, 5 स्टेप्स में कंप्लीट रहेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 स्टेप यू कैन कंप्लीट। चलिए एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन रीड करिए क्या है। क्वेश्चन दिया है टाइम पीरियड, क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, रीड करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। कहता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम which may depend upon mass of bob m, length of pendulum l and acceleration due to gravity g। क्वेश्चन में दिया है, हमने ड्राइव करके लाना है, ड्राइव द इक्वेशन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। इट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी g। सो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या दिया है देखिए, दिया है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को मैं दिखा दे रहा हूं कैपिटल डी से। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर, इक्वेशन नंबर 1। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ पर, इक्वेशन नंबर 2। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल एक्सेलरेशन जी पर, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन में गिवन है कि टाइम पीरियड डिपेंड ऑन दीज 3 फैक्टर्स। टी टाइम पीरियड है, इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दीज 3 फैक्टर, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन। क्लियर। नाउ स्टेप नंबर 2 फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से कंबाइन कर देंगे। टी डायरेक्टली डिपेंड किस पर आएगा, एम एल जी। क्लियर। खोल देंगे, यहीं पर खोलेंगे तो क्या आएगा, टी इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा के एम एल जी। के क्या है, के इक्वल टू कांस्टेंट। कहां से आया कांस्टेंट, बिकॉज इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी देन यू विल गेट ए कांस्टेंट। देन नेक्स्ट स्टेप, अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट को छोड़ देंगे। कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं था, कांस्टेंट को छोड़कर राइट साइड में जो भी है जो डिपेंडेंसी है, इन सब के ऊपर क्या लगा देंगे, ए, दूसरे बी और तीसरा है तो सी, चौथा होता तो डी। क्लियर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कैपिटल ए। सेकंड स्टेप कंप्लीट। समझ आ गया सबको। दीज आर द 2 स्टेप। पहले स्टेप में हाउ मेनी फैक्टर्स डिपेंडेंसी, नंबर सेकंड कंबाइन करके वी विल गिव ए बी सी। क्लियर। देन आप चलते हैं अगले स्टेप में। स्टेप नंबर 3 क्या है, 3। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस निकालेंगे। सबसे पहले क्या है एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला, बताइए। एलएचएस में है टाइम टी तो है, टाइम पीरियड टी। टाइम का फॉर्मूला होता है एम नहीं है एम 0, एल नहीं है एल भी 0, टाइम है केवल, टाइम को टी से दिखाते, टी की पावर 1। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस। अब क्या निकालेंगे अगला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस। आरएचएस में के इज कांस्टेंट, के का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। क्या बचा, एम ए एल बी जी सी, इसका निकालते हैं। चलिए एम मतलब मास फंडामेंटल है, उसका एम हो गया, एम की पावर ए। एल मींस लेंथ का एल हो गया, एल की पावर बी। जी क्या है देखिए क्वेश्चन में, जी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं होती, तोड़नी पड़ेगी। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम की पावर सी। सॉल्व कर देंगे। एम ए एल बी साथ में लिख लिए। वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल, क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर की पावर सी। खोल देंगे, फंडामेंटल हो गया। एम ए एल बी डिस्प्लेसमेंट के लिए बोले, क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, एल अपॉन टी स्क्वायर की पावर सी। चलिए एक साथ लिख लेते हैं, एम की पावर ए, एल की पावर बी यहां से आएगा, एल की पावर सी यहां से आएगा। कितना हो जाएगा, बेस से में तो पावर ऐड होती है ना, एल की पावर बी इंटू एल की पावर सी। एल की पावर बी ए हो गया, एल की पावर सी, तो क्या एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर 2c हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा -2c। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
किसका, RHS। अब क्या है, स्टेप नंबर 4, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। कंपेयर करेंगे LHS और RHS को। चलिए कंपेयरिंग करते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। LHS में देखिए m की पावर कितनी है, 0 है। यहाँ m की पावर क्या है, a, इसका मतलब a इक्वल टू 0। a कितना आ गया, 0। अब आ जाइए यहाँ LHS में, LHS देखिए, LHS में l की पावर कितनी है, 0। यहाँ कितनी है, b प्लस सी, इसका मतलब b प्लस सी भी कितना हो गया, 0। अब यहाँ देखिए LHS में t की पावर कितनी है, 1। यहाँ कितने है, t की पावर -2c इक्वल टू हो गया आपका 1। -2c किसके इक्वल हो गया, 1। तो c हो गया -1/2 हुआ। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इसमें रख दीजिए, तो b -1/2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू हो गया हाफ। c की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देंगे, तो a b c तीनों आ गए। a निकल गया 0, b निकल गया हाफ, c निकल गया हाफ। अब क्या करना है, अब यहां पुट करना है। चलिए पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन a इक्वेशन क्या थी, k इक्वल टू, इक्वेशन a थी t इक्वल टू k m a l b g c, ये थी, इस पर रख दीजिए t इक्वल टू k, m की पावर 0, l की पावर b मीन्स हाफ, g की पावर c माइनस हाफ। तो कितना आ गया, k इक्वल टू, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। जैसे x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन विल बी 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा, k इंटू 1, हाफ मतलब रूट l। जैसे x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ मतलब √x है, √ का मतलब हाफ होता है ना, इंटू g की पावर माइनस हाफ है, g की पावर नीचे आएगा तो g की पावर हाफ हो जाएगी, प्लस हो जाएगा नीचे लाने पर, तो t इक्वल टू क्या आ गया, k √l अपॉन √g। तो कितना आ गया, k इक्वल टू k, साथ लिख लेंगे l अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला, ये हो गया था। अब k क्या कितना होता है, 2 पाई। मुझे पता है k इक्वल टू 2 पाई होता है, बट हाउ यू कम टू नो, आपको नहीं पता है, तो आप k को k ही छोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई √l अपॉन g। इट इज डन बाय डायमेंशनल मेथड। क्लियर। So 5 steps are there and very easy. It will come up 5 marks. 5 marks का आएगा. It is very easy question for your syllabus. Very easy. Clear? So you can try. This is the third application of Gauss dimensional method. So by dimensional method we can check the equation. We can find out dimensional formula. We can convert from one system to another. We can drive any equation by dimensional method. Clear? Now, next point is, what are the limitation of dimensional analysis? Limitation, drawback, इसे बोलते हैं ड्रॉबैक। लिमिटेशन सब होती कमियां। डायमेंशनल मेथड जब इतने सारे काम कर सकता है तो क्या इसके अंदर कुछ कमी भी है? दिस देयर एनी प्रॉब्लम? मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इन साइंस नथिंग इज एंड। एंड कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना हो, मतलब कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो प्योर हो, जिसमें कोई कमियां ना हो। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ कमी होगी, तो वही पूछ रहा है कि क्या कमी है। डायमेंशनल मेथड जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता है, बाय डायमेंशनल मेथड वी कैन चेक द इक्वेशन, बाय डायमेंशनल मेथड वी कैन ड्राइव द इक्वेशन। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स क्या है, कुछ कमियां हैं या नहीं? चलिए देखते हैं, अगर कुछ कमी है तो क्या है। नंबर फर्स्ट, बाय डायमेंशनल मेथड, बाय डायमेंशनल मेथड फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस, बाय डायमेंशनल analysis we will not get any information about 1 2 3 etc. इस तरह के numbers, we will not get any information about numbers because number is not physical quantity. तो डायमेंशनल मेथड से इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। बाय डायमेंशनल मेथड वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी इंफॉर्मेशन, वी विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट 1 2 जैसे अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी प्रूफ किया था, के की वैल्यू हाफ होती है, आप डायमेंशनल मेथड से पता लगा सकते हैं। नो, अगर आपको पता है तब आप लिखेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट फॉर यू।
दैट मीन्स बाय डायमेंशनल मेथड इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक द नंबर्स। डायमेंशनल मेथड से हम नंबर को चेक नहीं कर सकते बिकॉज वी नो दैट नंबर इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? नंबर सेकंड लिमिटेशन बाय डायमेंशनल मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस, बाय डायमेंशनल एनालिसिस we cannot prove by dimensional form method we cannot prove those equations which contain more than 3 variable मीन्स बाय डायमेंशनल मेथड वी कैन नॉट प्रूफ, हम प्रूफ नहीं कर सकते, हम ड्राइव नहीं कर सकते जो इक्वेशंस विच कैन नॉट विच कंटेन मोर देन 3, मतलब ए बी सी जो कांस्टेंट में लगा रहा था अभी आपके सामने मैंने कांस्टेंट लगाया था टी इक्वल टू के एम ए एल बी जी सी। तो अगर ये 3 ए बी सी से ज्यादा डी हुआ, डी भी आया, कोई और टर्म भी आ गया जिसमें डी लगाना पड़ा, तो वी कैन नॉट प्रूफ दैट इक्वेशन बाय डायमेंशनल मेथड। हम ऐसे इक्वेशन को डायमेंशनल मेथड से प्रूफ नहीं कर सकते विच कंटेन मोर देन 3 वेरिएबल। जैसे मास पर डिपेंड करा, लेंथ पर करा, एक्सेलरेशन पर करा, किसी और टर्म पर और करने लग गया, तो 3 से ज्यादा जब टर्म हो जाएंगे तो उसको फिर हम डायमेंशनल मेथड से प्रूव नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक। नंबर थर्ड, वी विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन about sin theta, tan theta, cos theta, cot theta, etc. means we will not get any information about the trigonometric function. We cannot apply dimensional formula for trigonometric function. मैंने कहा ना tan theta का dimensional formula कितना होगा, m0 l0 t0, because dimensional formula will not doesn't give any information about the trigonometric फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता। नंबर 4, बाय डायमेंशनल एनालिसिस वी विल नॉट चेक वेदर गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर और स्केलर। तो बाय डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक वेदर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। हम ये नहीं चेक कर सकते डायमेंशनल मेथड से कि स्केलर क्वांटिटी है या फिर फिजिकल है। इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है? बाय डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉट, वी विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट 1 2 3 नंबर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बाय डायमेंशनल फॉर्मूला वी विल नॉट we cannot prove the equation which contain more than 3 variables. And by dimensional formula we will not get any information about trigonometric function. Trigonometric function का कोई dimensional formula नहीं होता, उनका dimensional formula 0 होता है। By dimensional formula we will not we can't check whether the given equation is given physical quantity is scalar or vector. So these are the limitations of dimensional methods. Okay, चलिए अब करते हैं अगला पॉइंट। चलिए ये था डायमेंशनल मेथड, द होल टॉपिक वी हैव डिस्कस। सो बहुत चीजें हम डायमेंशनल मेथड से कर सकते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए आपके पास आया फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आया 1 मार्क्स का। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी दी है, फिजिकल क्वांटिटी, आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दी है। आपका टास्क है, योर टास्क टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। आपको इन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। चलिए देते हैं। मान लीजिए आपको दिया है मोमेंटम, नंबर सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, नंबर थर्ड आपको दिया है, मान लीजिए आपको दिया है पावर, मान लीजिए अब आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए आपको दिया है, और कौन सा जो फॉर्मूले आपको याद हो, आपको दिया है मान लीजिए प्रेशर, क्लियर, और आपको दिया है मान लीजिए एक्सेलरेशन,
और आपको दिया है मान लीजिए फोर्स। तो इतने सारी क्वांटिटियां मैंने ले ली। देयर आर मेनी क्वांटिटीज आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बैक साइड एट द एंड ऑफ द एनसीईआरटी बुक यू विल गेट अ लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो लेकिन आप निकाल केवल उनका सकते हैं जिनका फॉर्मूला आपको पता। इफ यू डोंट नो, सपोज इफ आई विल गिव यू अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यू नो अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? नो ना। सो हियर यू कांट. When further in coming time, when you come to know what is this frictional coefficient of viscosity, what is coefficient of viscosity, then only you can find out, है ना? And coefficient of viscosity will come in second chapter. So here you have to learn how to find out, not memorize. Don't memorize them. ठीक है? You only check those physical quantity which you know, जिसको आपने 10th, उससे पहले 11th ना, उससे पहले 9th 10th में कहीं पर भी 8th में पढ़ रखा है, उनके बारे में आप निकाल सकते हैं। ये सब आपने पढ़ रखे हैं। You know in 9th class, you know about this 9th and 10th due to the reason I have given. Now चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें चाहिए नंबर फर्स्ट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज द जनरल थिंग्स, दीज यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है? मोमेंटम। एवरीबॉडी नो मोमेंटम P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। The product of mass and velocity is called momentum of a moving body. If the mass of moving body is v and is moving with velocity v, then the product of mass and velocity is called momentum. चलिए निकालते हैं। मास इज फंडामेंटल, वेलोसिटी को कैसे तोड़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो मैंने यहां दिया उन्हें तोड़ देंगे, बस हो गया। मास का m, डिस्प्लेसमेंट मीटर 1 l, टाइम का t ऊपर गया तो -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। निकल गया, बहुत आसान है। नंबर सेकंड, मान लीजिए नंबर सेकंड क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का निकालना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? एवरीबॉडी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. In 9th class we have studied about it. mgh. m is mass, g is acceleration of gravity, acceleration हुई, height is h is height। चलिए शुरू करें। मास फंडामेंटल है, देयर इज नो नीड टू ब्रेक इट। एक्सेलरेशन नहीं है फंडामेंटल, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाइट, हाइट इज द लेंथ, तो ये तो फंडामेंटल हुई। क्यों हुई सर? हाइट क्या चीज है? हाइट लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मीटर इज फंडामेंटल, तो हाइट को तोड़ नहीं सकते। नाउ मास सही है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम स्क्वायर, एक ऑलरेडी है, एक यहां से आ जाएगा इनटू हाइट। बस चलिए, मास का m की पावर 1, डिस्प्लेसमेंट l हो गया, l की पावर 1, हाइट के लिए भी l हुआ, l की पावर 1, टाइम के लिए t स्क्वायर। कितना आ गया? ये आ गया m1 l2 1 2 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए निकालिए, अगला करते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, आप समझेंगे, समझ जाएंगे, इसलिए मैंने बहुत सारे लिखे हैं। नंबर थर्ड इज पावर। नाउ व्हाट इज पावर? क्या है पावर? पावर 10th में पढ़ा था। पावर बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर, है ना? वर्क को क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम फंडामेंटल है। फोर्स को क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू एक्स अपॉन टाइम ऑलरेडी है। चलिए वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा, इनटू टाइम है ही, इनटू एक्स। समझ रहे आप? मैंने उस टर्म को तोड़ रहा हूं जो यहां आ रहा है। क्या आ गया? आप रख देंगे। मास का m की पावर 1, डिस्प्लेसमेंट का l1, x क्या है? x भी डिस्प्लेसमेंट है, उसका भी l हो गया, 1 हो गया, टाइम t क्यूब 3 है ना, 2 और 1 3, कितना आ गया? m1 l2 t की पावर -3। दिस इज द डायमेंशन। तो जो मैंने यहां लिखे हुए हैं ना, उन्हें तोड़ दीजिए यहां तक। तो वर्क को ऐसे तोड़िए, फिर फोर्स उसके अंदर ऐसे तोड़ दीजिए, उसके अंदर एक्सेलरेशन को ऐसे, वेलोसिटी को ऐसे तोड़ दीजिए, का आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अगला लेते हैं। अगला क्या है देखिए, अगला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बोली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है, काइनेटिक एनर्जी होगी
हाफ एम वी स्क्वायर। अभी मैंने बोला बाय डायमेंशन फॉर्मूला वी विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स, तो हाफ के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हाफ का कुछ हो ही नहीं सकता। एम हो गया मास, वी हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो आ गया मास के बदले m1, डिस्प्लेसमेंट के बदले l, टाइम के बदले t की पावर 2, ये हो गया m1 l स्क्वायर, नीचे हो गया t स्क्वायर, तो एक साथ लिख लेंगे क्या आ जाएगा m1 l2 t माइनस 2। क्लियर? दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। निकल गया? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, आप कितने भी कर सकते हैं, 100, 200, 300, 500, 600 कितने भी कर सकते हैं। अगला क्या है प्रेशर। अब बताइए प्रेशर होता है, सबको पता है 9th में पढ़ रखा है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा होता है परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स ही होता है। दैट फोर्स वैल्यू ऑफ द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर ऑन दैट साइड, जो 90 डिग्री पे लगता है दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। मास फंडामेंटल हो गया, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू लेंथ इंटू विड्थ, नीचे है वेलोसिटी को तोड़ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू लेंथ इंटू विड्थ, टाइम है यहाँ, बस हो गया। मास के बदले m, डिस्प्लेसमेंट के बदले l, टाइम के बदले t, दूसरे टाइम के बदले भी t, लेंथ के बदले l, लेंथ मीटर में होता है, विड्थ भी मीटर में होता है l, तो क्या हो गया एक तो ये हट गया, कितना आ गया m1, l ऊपर गया तो कितना हो गया -1, t ऊपर गया -2, 1 2 है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। क्लियर? सो यू कैन फाइंड आउट एनी एक्सेलरेशन और फोर्स का तो यही निकला हुआ है, कितने बार निकाल दिया। सो यू कैन चेक, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है बस। क्लियर? दो बचे हुए आप कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते। नंबर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरह का होता है, इफ f equal to ax plus bx square, where f equal to force, x equal to displacement, find dimensional formula of a and b. Very important question. This is the equation is given. f equal to ax plus bx square, then find dimensional formula of b और a, f is force and x is displacement। ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट दिया, f फोर्स दिया, हमें क्या निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा था अकॉर्डिंग टू होमोजेनेटिक इक्वेशन, होमोजेनेटिक इक्वेशंस कहती है डायमेंशनल फॉर्मूला, द इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी टू टर्म्स आर इन एडिशन ओनली व्हेन देयर डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम। ये इसके इक्वल है, टू टर्म्स आर इक्वल ओनली व्हेन देयर डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम। दो चीजें सब्ट्रैक्ट एडिशन इक्वलिटी में तभी होती हैं व्हेन देयर डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, इसका और इसका भी सेम होगा, तभी तो ये एडिशन उसमें है। देखिए किसी भी इक्वेशन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर इफ फिजिकल क्वांटिटी एडिशन, अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इक्वलिटी है, तो इनका मतलब उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है सेम है। इसका मतलब यहाँ होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f इक्वल टू dimensional formula of ax, dimensional formula of f is equal to dimensional formula of bx square। दोनों के इक्वल होगा तभी तो इक्वल है। ऐसे इसका भी इसके इक्वल भी लिख सकते हैं हम, तो कैसे भी हम निकाल लीजिए। पहला f इक्वल टू है ax, f क्या है फोर्स है, फोर्स इक्वल टू a इंटू एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है। चलिए शुक्र, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, पूरा लिखना पड़ेगा। फोर्स को बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू ए यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन नहीं है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दीज आर द कांस्टेंट, इन्हें बताना इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए मास इंटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ए इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाउ मास फंडामेंटल है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम का करना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा a इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मास का हो गया m, डिस्प्लेसमेंट के बदले हो गया l, टाइम के बदले हो गया t का, इसका सब फंडामेंटल हो गया। a निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का हो गया l, तो हट गई। a कितना आ गया
m की पावर 1, l बचा नहीं 0, t ऊपर चला गया 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया? a का। अब b का निकालते हैं। चलिए b का कैसे निकालेंगे? b का देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f इक्वल टू है bx स्क्वायर। f को बोलते हैं फोर्स इक्वल टू b डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। हाफ टर्म लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस लिख दें, डिस पी DISP लिखूंगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, b इंटू डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर। तो यहां पर से फोर्स का कितना आ गया? फोर्स को तोड़ेंगे, मास वेलोसिटी अपॉन टाइम, b डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम का हो जाएगा स्क्वायर, b डिस्प्लेसमेंट। एक पावर तोड़ गई इसकी, कितना बचा? मास अपॉन टाइम स्क्वायर इक्वल टू b इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही बचा ना? यस और नो? ये तो बचा। तो बहुत आसान है, तोड़ेंगे। आपको मैंने तोड़ने का तरीका बता दिया, इससे आसान कोई चीज नहीं हो सकती। मास के बदले m, t स्क्वायर, b डिस्प्लेसमेंट का l। तो b कितना आ गया? b आ गया m अपॉन t स्क्वायर l। यहां आ जाएगा ये m1, l ऊपर गया -1, t ऊपर गया -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। सो यू कैन फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल। बस आपने क्या याद रखना? इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, इफ two are in addition, that means their dimensional formula is same. If they are equal, that means their dimensional formula is same. Subtraction, addition और equality तभी हो सकती है when their dimensional formula will be same. Multiply, division हो सकता है, लेकिन addition, subtraction और equality तभी होगी when their dimensional formula of all the terms will remain same. Clear? So this is next question. इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत आसान है। आपको बस टर्म जो मैंने वर्क और फोर्स से रिलेटेड लिखा है वो लिखना। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह का आता है, L प्लस L इक्वल टू 0। चेक द इक्वेशन बाय डायमेंशनल मेथड। चेक करनी है ये इक्वेशन सही है। बाय डायमेंशनल फॉर्मूला इज दिस इक्वेशन। मान लो ये भी नहीं दी, ये दिया L प्लस L इक्वल टू L। चेक कर लेते, कल भी किया हमने। ये L मतलब लेंथ हुआ, L क्या है? मान लो लेंथ है, लेंथ का L हो गया। तो m0 L1 t0 प्लस m0 L1 t0 इक्वल टू m0 L1 t0 से तीनों का लिख दिया। तीनों सेम है, इसका मतलब बाय डायमेंशनली इट इज करेक्ट। डायमेंशनल मेथड से करेक्ट होने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने चाहिए। इफ द इक्वेशन इज करेक्ट बाय डायमेंशनल मेथड, डायमेंशन फॉर्मूला, बट ये मैथमेटिकली सेम नहीं है। मैथमेटिकली 2L इक्वल टू L नहीं हो सकता। मैथमेटिकली क्या है? रॉन्ग। दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकली रॉन्ग बट डायमेंशनली इट इज करेक्ट इक्वेशन। डायमेंशनल तौर पे क्या है? ये करेक्ट है। तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला किसी का भी निकाल सकते हैं। यू कैन चेक द इक्वेशन, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। क्लियर? आप कुछ भी आप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आया, क्वेश्चन है इफ e की पावर bx फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इफ x डिस्प्लेसमेंट। इन इफ में लिखना इन e की पावर bx फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इफ x इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैंने कल भी आपसे बोला है कि बाय डायमेंशनल फॉर्मूला वी विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स, वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देयर डायमेंशनल फॉर्मूला वी विल नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ई एंड बी। इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? 0 हुआ। दिस आर नॉट फिजिकल ना, जो क्वांटिटी फिजिकल है ही नहीं, जो फिजिक्स में हमने पढ़ी नहीं है, जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ी है, वो डायमेंशनली तो ना करेक्ट होंगी। तो इनके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी पावर का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब bx कितना होना चाहिए? इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वांटिटी बिकॉज दिस इज नॉट फिजिकल। ये फिजिकल नहीं है, ये कॉम्पिटिशन में आया है। इट वॉज इन IIT, मीन में था, ये कई साल आया हुआ क्वेश्चन है। नीट में तो कई साल पूछा जाता है। तो 10 कल मैंने 10 वाला कराया था आपको, आज मैं ई वाला करा रहा हूँ। ई इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। इसकी पावर जो भी होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? 0। तो b कितना हो गया? m0
L0 T0 अपॉन x। तो क्या M0 L0 T0, x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का L होता है, तो ऊपर चला गया, कितना आ गया M0 L माइनस 1 T, ये गया ना 1 ऊपर माइनस, ये है B का डायमेंशन। इज इट क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है। सो यू विल गेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दीज क्वेश्चंस यू विल गेट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर? यस। चलिए एक और कर लेते हैं। मान लिया आपके पास ये आ गया क्वेश्चन, आ गया इन sin kx find dimensional formula of k if x equal to length, x लेंथ है। फिर वही बात हो गया, मैंने अभी कहा इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब कि x इक्वल टू क्या हो गया M0 L0 T0, बिकॉज दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड की लिमिटेशन क्या है? वी विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डायमेंशन फॉर्मूला 0 होना चाहिए। तो साइन का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया के कितना हो गया M0 L0 T0 अपॉन x हर बार लेंथ ही नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। L0 T0 लेंथ के लिए हो गया L, कितना आ गया इसका भी M0 L माइनस 1 T0। x लेंथ ही होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन दैट व्हाट इज L। L क्या है ये क्वेश्चन में दिया होगा कि L लेंथ है, क्या चीज है, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। क्लियर? ये मानिए ये दिया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्या करें बताइए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको करनी है। देखें इफ p इक्वल टू ax प्लस b t स्क्वायर वेर x इक्वल टू b, ऐसे करते हैं at प्लस b t स्क्वायर वेर t इक्वल टू टाइम एंड f इक्वल टू p इक्वल टू मान लेते हैं प्रेशर। प्रेशर भी मान सकते हैं, फोर्स में जो दिया हो क्वेश्चन में, मैंने दिया है क्वेश्चन में इफ p इक्वल टू दिस वन t टाइम p प्रेशर, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड p, a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। क्लियर है? अगर इक्वल टू में इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p इक्वल टू at, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p इक्वल टू pt स्क्वायर। होगा नहीं होगा? बिकॉज अभी मैंने पढ़ाया, बार बार नहीं बोलूंगा भाई, होमोजेनिटी के इक्वेशन से यही होगा। तो P क्या है? प्रेशर है। P इक्वल टू गया AT प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू A इंटू टी। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू A इंटू टी, क्या है? टाइम। ठीक है, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया इक्वल टू A इंटू टाइम। ठीक है, तो A इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया इंटू टाइम। तोड़ देंगे इसको, मास एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एरिया इंटू टाइम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक टाइम यहाँ था, एक एक्सेलरेशन से आ गया टाइम स्क्वायर। आगे और तोड़ देंगे, क्या आ गया A इक्वल टू मास, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एरिया को बोलते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू टाइम का हो गया क्यूब। कैसे हुआ टाइम का क्यूब? वेलोसिटी टाइम स्क्वायर था, एक और आ गया तो आ गया मास के लिए m, डिस्प्लेसमेंट के लिए l, लेंथ मीटर में l, विड्थ मीटर में l, टाइम t का क्यूब। कट गया m1 l1 t माइनस 3। कट कैसे जाता है? ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A। अब ऐसे किसका बता सकेंगे? B का। B का पता कर लेंगे ना, क्या होगा B का? चलिए B का पता करता हूं। B के लिए क्या करेंगे आप? वही प्रोसेस को वापस करेंगे। P इक्वल टू BT स्क्वायर। P क्या है? प्रेशर है, B इंटू टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? बस तोड़ देंगे प्रेशर को, फोर्स अपॉन एरिया B टाइम स्क्वायर। एक ही तरह के क्वेश्चन करते करते बोर हो जाते हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, है ना? केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूँ।
यू कैन सॉल्व नाउ। डायमेंशनल फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी। क्लियर? बस तो डाटा वीडियो से होकर जाइएगा। इफ यू सी द वीडियो देन ओनली यू कम टू नो व्हाट इज दिस। क्लियर? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया हो गया लेंथ इनटू विड्थ अपॉन टाइम स्क्वायर, यहां ले आया तो इक्वल टू डी हो गया। तो ये क्या ना हो गया, मास वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, हो गया लेंथ इनटू विड्थ इनटू टाइम का क्यूब हो जाएगा डी। वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा ना। चलिए बी हो गया मास, वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कितना हो गया मास इनटू लेंथ इनटू विड्थ इनटू टाइम की पावर 4 हो गया। एक और आएगा ना यहाँ से टाइम, तो बस हो गया एम, डिस्प्लेसमेंट एल, लेंथ एल, विड्थ मीटर बना भी जाती है, टाइम की पावर 4, कितना आ गया, एक हट जाएगा m1 l माइनस 1, ये हट गया t minus 4. This is the dimensional formula of B. So you can find out. So this is a very important part we have discussed in class 11th, dimensional formula. So I hope that you learn something from it. Please go through it, solve it, see it. Now in next lecture we will discuss about error. Errors means mistakes. We will see how many mistakes we can do in physics, how many type of mistakes are there in physical quantity, and how we can find out the mistakes. So till that moment, go through it, solve numericals and practice. So stay home, stay safe, bye.